exercise 4b. We will be doing all the important sums in this. Let's do part 1. Part 1 is easy. Represent the following inequalities on real number line. So let's do part 7 of this. So it's -5 less than x less than equal to -1. So let's make the number line. So it's real number. What I have told you, first write what x belongs to. X belongs to real number line. X belongs to real number line, so make it. -5. Since there is no equal to, so here will be a hollow circle. And here will be a solid circle or darkened circle, because here is equal to. So this is darkened circle. Now darken the line. So this is the solution of part 7. Do all others according to yourself and ask if there is any doubt in the comments. Thank you. Let's start question number 2. I will be doing part 4 in this. So there is this number line given. In this number line, this is an hollow circle marked as -1, and this is a filled circle marked at 5. So we have to represent it, right? So we will first write x. Since this line is filled, there are no bubbles in between, so we will say x belongs to real number. ठीक है. उसके बाद अपन लोग क्या लिखेंगे, x सिंबल बना लेंगे. x की वैल्यू देखिए, इसमें ये फिल्ड नहीं है ना, सर्कल डार्केंड नहीं है, तो इसमें इक्वल टू नहीं आएगा. ये डार्केंड है तो इसमें इक्वल टू आ जाएगा. ये -1 पे है तो -1 कर देंगे. ए वाला 5 पे है तो इसे 5 कर देंगे. एज सिंपल एज दिस. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, 4b exercise. Question number 3 is for the following inequations, graph the solution set on the real number line. ठीक है. अब मैंने क्या कहा है, ये 2 पार्ट वाले हैं, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. Question number 3. So let's solve it. I have said there are 2 inequalities, so divide it in 2 parts. We will line and we will write here -4 3x -1, and here will be 3x -1 less than 8. On solving this, we will get x, and here will be 3, right? On solving this, what we will get? We will get -1, and this will be x. Am I clear? Now solve this. Combine the limit x 3 -1. Now we will represent it in graph the solution set. So we have to graph the solution set. First we will write the solution set. So solution set will be x curly brackets x such that x -3 -1. Am I clear? And here will be and x belongs to real number. Next thing, now we have to graph it.
So for graphing it, we will make a line, number line. Mark here 0, 1, 2, 3. Minus 1. Here is equal to, so we will be darken the circle. And here is no equal to, it is less than, so leave it hollow. Now since x belongs to real number, so we will darken the line. Next question we will do question number 4. First let me do question number 3, second part, because most of the students have doubt in this. So it will be x minus 1, 3 minus x less than equal to 5. Clear? Let's make a line. Since there are two inequalities, so let me make first part 5. On solving this, we will get 2. Let me make the second part, x minus 1, 3 minus x, 2x, 4, and this will be x and 2. Am I clear? Now combine the limits. 2, do here subtraction, minus sign लगा लो यहाँ पे. On solving this, we will get this. Now we have to graph this. So we will make a number line. On number line we will write 0, 1, 2, minus 1, minus 2. So this will be an empty hollow circle, and this will be a darker circle since here is equal to, and we will mark the line, or I will say fill the line. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. Question number 4, we will do part number 4 first. Part number 4 is 2 minus 3x is greater than 7 minus 5x. X belongs to real number. Clear? On solving this, we will get 2x greater than, here will be 9. Sorry. Here will be 5. So x greater than 2.5. Represent this on number line. We will make a number line. Mark here 0, minus 1, 1, 2, 3. Here will be 2.5, but it will be an hollow circle. Mark this point 2.5 and make an hollow circle and darken the line since x is greater than 2.5, and darken the arrow, which is most important part in this. Am I clear? Next to question number 5th, part number 5. 1 plus x greater than equals to 5x minus 1, 11, sorry. And or solving this, we will get 4 and it will be 12. On solving this, we will get x and 3. So we can say that x is less than 3. Make a number line 0, 1, 2, 3, and this is minus 1. So we will darken this square since there is equal to sign, and x is less than, so all the numbers less than 3, which are these, we will darken the line this side
and darken the arrow, which is most important. Part number 6. Part number 6. Two x plus 5 by 3 greater than 3x minus 3. On solving this, multiply this here, so it will be 9 minus 9 2x plus 5. On solving this, we will get 7x and here will be 14. So x is less than 2. Let's solve this on number line. So x is less than 2. 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Let's hollow this circle because there is no equal to and x belongs to real number. And x is less than this. So all the number less than 2 are the part of x. So we will darken the line this side. And the arrow, which is most important part. Then now we will do question number 6. Here question number 6 is minus 3 x minus 2 9 minus 2x and x belongs to natural number. This thing is important. On solving this, since this is of 2 part, we will divide page in 2 parts. So it is minus 3 x minus 2 x minus 2 9 minus 2x. Let's solve this. So it will be 11. This will be 3x. Here will be 11 by 3 x, which will be equal to 3 point. So this part will be equal to x is less than equal to 3.6 and so on. 6, 6, 6. On solving this, we will get x is greater than minus 1. Now combine the limit. X 11 by 3 minus 1. Now make line, number line. Zero, minus 1, 1, 2, 3. Since n is integer, so can we take n 4? No, because 4 will be greater than 3.66. Can we take 3? Yes. Can we take 3? Yes. सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर में, सिंस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे अपन लोग वैल्यू 4 ले पाएंगे नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी 3.66 से, तो वो तो ले नहीं सकते हैं अपन लोग। तो अपन लोग नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लेंगे अपन लोग 3 लेंगे। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, right? So we will take 1 2 and 3 not greater than this number,
since x belongs to x is less than -1. So this will be answer. Solution set will be 1, 2 and 3. Am I clear? Let's make the number line for this. Here we will mark 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2. Here we will mark with a darkened circle since there is equal to sign, and we will mark here 1.5 -1.5, darken the line till 5, and here will be a hollow circle, and darken the line since x belongs to real number. X belongs to real number, so we will darken the line. Next question. Question number 12. Solve and graph the solution set of. Let's do the question number part 3. X plus 5 greater than equal to 4x minus 1 and 3 minus 2x less than -7 and x belongs to R. This is important. Let's solve one by one. So first solve this part. So x plus 5 greater than equals to 4x minus 4. Let's solve this. So it will be 3x and here will be 9. 3. Let's solve the part number 2. 3 minus 2x minus 7. Let's solve this. So it will be 2x minus 10. We can cut minus and minus, so we will change the inequality sign. 2x, x is greater than 5. So we got two limits. Now we will combine the limits. X here we can't combine the limits since this part says x is greater than 5 and this part says x is less than equal to 3. So there is no conclusion, so we will write empty set. Since these both conditions can't be true at once. This is true, but combining this and this condition according to question can't be true together, so we will write here empty set. The solution for this question is empty set. Since I will explain it again, after solving this we got x is less than equal to 3, and after solving this we got x is greater than equal to 5. Greater than 5. So if x is greater than 5, it can't be less than 3. So these conclusions are not conclusive, so we will write empty set. Now let's do the question number 14. Question number 14. The diagram represents two inequalities A and B on a real number line. Write down A and B in set builder notation, and part 2 is represent A intersection B and A intersection B dash on two different number lines. So I will make question number 14 में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार. देखिए ये जो कट है यहाँ पे, ये जो कट है
इसका मतलब है ये इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 5 नहीं है इंक्लूडेड। ये जो कट है इसका मतलब है ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इक्वल टू में नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, जो लाइन है इसके नीचे इक्वल टू आएगा। सो एक्स -2 और 5 के बीच में है, एक्स -2 और 5 के बीच में है। यहाँ पे इक्वल टू किसके साथ आया है? -2 के साथ। यहाँ पे एक्स है और -4, और ये इक्वल टू इसके साथ आएगा, जहाँ पे लाइन है वहाँ पे इक्वल टू आएगा, और ये 3 के साथ इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोगों को क्या करना है इसमें, अब करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन पार्ट। अगर डायग्राम देख के समझें अपन लोग तो कॉमन पार्ट कहाँ से होगा? देखिए ये यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा तो -2 वाला पार्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि 3 इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं ले पाएंगे अपन लोग, तो 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर इसका अपन लोग देखें तो क्या आएगा? -2 तो होगा, क्योंकि इसमें भी है -2, इसमें भी है, तो अपन लोग इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स। अब इस वाले पार्ट में देखते हैं, इस साइड देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो अपन लोग क्या लेंगे? स्मॉलर वाला 3 ले लेंगे। और ये 3 नॉट इक्वल टू मतलब 3 इस वाले पार्ट में नहीं है, इसमें है तो नहीं है लेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट लेना है, तो नहीं है किसी भी एक पार्ट में तो वही चीज़ लेंगे। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब उसके बाद अपन लोग आगे सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी ये अपन लोगों ने पीछे पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है ए माइनस बी। ये अपन लोगों ने पीछे पढ़ा था एक एग्जाम्पल में। इसका मतलब होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में है? ए में है। ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो वो कितना पार्ट है? देखिए यहाँ से देखते हैं अपन लोग, देखो पीछे वाला पार्ट तो पूरा बी में है, तो ये तो ले ही नहीं पाएंगे अपन लोग, तो यहाँ से देखेंगे। देखो सी जो बी में है वो 3 नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि ये कर्व्ड है, तो यहाँ पे बी में 3 नहीं है, तो अपन लोग बी, लेकिन ए में है तो अपन लोग ए में ले पाएंगे अपन लोग, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और इक्वल टू ले लेंगे, ठीक है। ये क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे और इक्वल टू ले लेंगे, क्योंकि बी में नहीं है, ए में है। यही तो चाहिए अपन लोगों को, जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ ए में हो, ठीक है। उसके बाद 5 बी ए में नहीं है, और बी में तो बात ही नहीं है उसकी, उस चीज़ की, तो अपन लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x लिख के 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा सॉल्यूशन। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे इसकी, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। आप नंबर लाइन सही से बना लेना अपनी कॉपी में, 2 1 0, ठीक है। अपनी कॉपी में सही से बना लीजिए। इसको डार्क कर देंगे, इसको लाइट रहने देंगे, और इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। ऐसी इसकी भी नंबर लाइन मिल जाएगी। अब पार्ट अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 18। इसे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। उसके बाद अपन लोगों ने क्या किया? अपन लोगों ने निकाला वैल्यू 5 और यहाँ पे निकाली 1। x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तब कॉमन पार्ट लेंगे अपन लोग, तो क्या आ जाएगा? x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं p माइनस क्यू। अब p माइनस क्यू क्या होता है? p माइनस क्यू होता है वो पार्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में है? p में है। तो वो क्या आएगा? यहाँ से देखते हैं अपन लोग पहले x। अब मैं क्या कहूँगा, x जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? 1 से, ठीक है। एक तो अपन लोग को ये पता चल गया, और इस वाली देख के पता चल रहा है
कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, तो x इज लेस देन क्या होना चाहिए 5। तब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। ये क्या हो जाएगा p माइनस क्यू वाला पार्ट। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी डार्केंड सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, और ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, एक तो पार्ट ये हो गया, ये तो आसानी है, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं पार्ट 3, P इंटरसेक्शन Q डैश ऑन डिफरेंट नंबर लाइन। सेम ही है, P इंटरसेक्शन Q डैश क्या होता है, P इंटरसेक्शन Q डैश इक्वल्स टू P माइनस क्यू, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई। क्या इक्वेशन दी है, -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 प्लस 1 होल 2/3 लेस देन 5 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। मैंने क्या कहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पेज, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास, -2 लेस देन इक्वल्स टू x/2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ये आ गया इस वाले पार्ट को। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अपन लोग। ये क्या हो जाएगा, x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/3, ये कितना हो जाएगा 31/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 21/6, और यहाँ पे आ जाएगा x/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे काट देंगे 3 7 x। ठीक है, दो पार्ट आ गए अपने पास, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। सबसे पहले x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, होल नंबर चालू होते हैं 0 से। तो अपन लोग नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और उसके बाद 7 x में नहीं है, हॉलो सर्कल, और 1 आएगा x में, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7। अब इसमें ये होल नंबर है तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 में हॉलो सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैंने इसलिए बना के बताया कि आप लोग ये गलती ना करें, समझाने के लिए कि x में हॉलो सर्कल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू क्या कह रहे हैं, z। z क्या होता है, z भी हो सकता है, i भी हो सकता है, बात बराबर ही है। z और i बात बराबर है, इसका मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होता है इसका मतलब। अब इसमें क्या करना है अपन लोगों को, पूरे -4 से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, पूरे 7 तक अपन लोगों को डार्कन सर्कल बनाने हैं, 7 छोड़ के। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इंटीजर मतलब होता है, इंटीजर वैल्यू होती है 0 -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, लेकिन अपन लोगों को क्या लेनी पड़ती है, पॉइंट की वैल्यू नहीं ले सकते अपन लोग इंटीजर में।
ठीक है, इंटीजर वैल्यू ही लेनी पड़ी। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, 7 हॉलो सर्कल, क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है, और -4 पे डार्कन सर्कल, और बीच में लाइन खींच देंगे। बीच में नंबर आप लिख लीजिए अपने आप से, ठीक है। इस लाइन को डार्कन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन लोग। अब करेंगे 22 क्वेश्चन। अब चालू करेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 2011 में पेपर में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। x बिलोंग्स टू, सबसे पहले क्या बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू। उसके बाद अपन लोग देखेंगे क्या लिखा है, 2x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x + 4 लेस देन 11। अब इसको सॉल्व करेंगे दो पार्ट में। पहला अपन लोग लिख लेंगे 2x - 5 5x + 4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 4 लेस देन 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। ये यहाँ पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे आ जाएगा 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/5। इसको अपन लोग अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, 1.4। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन लोग। इस ये वाला सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -9, और x यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3। ठीक है। अब x जो है वो छोटा है किससे, 1.4 से, तो x की मिनिमम वैल्यू अपन लोग कितनी ले पाएंगे, 1, क्योंकि यहाँ पे x क्या दिया रखा है, इंटीजर दे रखा है। रियल नंबर होता तो अपन लोगों को 1.4 ही लेना पड़ता। ठीक है। अब उन लोगों ने क्या कहा है, सॉल्यूशन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बना लेंगे, पहले कंबाइन कर लेते हैं इसको। x 1.4, ये कितना हो जाएगा, -3। अब नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 तो ले नहीं पाएंगे अपन लोग, क्योंकि 2 बड़ा हो जाएगा 1.4 से। तो अपन लोग 1 0 -1 -2 -3 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 लेंगे नहीं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट करें। अब अपन लोग सिर्फ आए हुए सवाल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सीधे 31 पे आ जाते हैं। पहले 28 देख लेते हैं, वो बच्चों को डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, फाइंड दी 3 कॉन्जिक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दी सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकेंड एंड 1/5 ऑफ थर्ड इज एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 20। देखो, एट लीस्ट होता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसका मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एट लीस्ट में अपन लोग क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन, और एट मोस्ट में क्या लगाएंगे, लेस देन। ठीक है। अपन लोग एट लीस्ट में क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और एट मोस्ट में क्या लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो अपन लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेस देन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, दैट द सम ऑफ फर्स्ट नंबर को अपन लोग x मान लेते हैं, सेकंड को x + 1 और थर्ड को x + 2। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो मतलब एक, मतलब एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये 5 6 7 मान के चलते हैं, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है। तो हर नंबर में एक एक का गैप होता है। ठीक है। उसने क्या कहा है, 1/3 द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/3 ऑफ x ले लेते हैं, प्लस 1/4 ऑफ सेकेंड नंबर x + 1 प्लस 1/5 ऑफ x + 4 x + 2।
ठीक है, ये कितना होना चाहिए अपन लोगों का एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपन लोगों का 20। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 20, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। डायरेक्ट एलसीएम लेंगे अपन लोग 60, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे 60, तो 60 इंटू 20, तो 20x हो जाएगा ये, प्लस ये कितनी टाइम जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 15। ये वाला कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 12 टाइम, तो 12x प्लस 24 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। 20 35 और 12 47 x प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं 39 अपॉन 60 लेस देन इक्वल्स टू 20। इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो 1200 माइनस 39, इसको यहाँ पे लेके आकर यहाँ पे कितना आ जाएगा 47x। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपन लोगों का 1161 लेस देन x, और ये कितना है 47। ठीक है, अब इसको इससे काट लेंगे।